that was just not my zone. साड़ी आयरन करता है, कॉफ़ी बना के देते, for good or for bad you have to explore yourself. तो वो मेरा एक ऑप्शन सिर्फ ये था कि चलो. How close are you to भाभी जी? जब रियल लाइफ में मुझे ये शो ऑफर हुआ था तो पहले तो मुझे नाम ही नहीं पसंद आया था. मैंने कहा पागल हो गए भाभी जी, don't call me भाभी जी. So tacky. तो मैंने आई जस्ट काइंड ऑफ रिजेक्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मैंने कहा यार प्लीज़ यार, टाइटल ही थोड़ा अजीब है. हाँ. मैं नहीं कर रही है भाभी जी, डोंट कॉल मी भाभी जी. सो दैट वाज जस्ट नॉट माई जोन. मगर जब इवेंचुअली 6-7 महीने मना करने के बाद मैंने कहा यार मुझे नॉन फिक्शन करा लो, बिकॉज ZTV के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता था. आई डन डांस इंडिया डांस विद देम फॉर 4 years and it was one of the biggest non-fiction shows and the highest rated non-fiction shows with them, and with Z I had done a lot of events, so I had a rapport with the platform. So I told them भाई मुझे कुछ और दे दो, ये नहीं करना है मुझे, और कौन जाएगा, ये डेली सोप्स तो ना होंगे. So I said no, you have to do it, we think that you are just perfect for it, and I kept on saying no and they kept on saying yes. I said give me a non-fiction show. They said no, this is the show for you. And then eventually when I said yes and when I went to shoot for it and I called up then my boyfriend, I said कि भाई गलती हो गई, ये तो career, this is the end of my career, I will just die as भाभी जी, हो गया मेरा खत्म. But then when I eventually kind of, and I called them back and I said can I come out of it. He said no, now we will sue you because we are going on air next week, and if you say no we'll sue you now. It's like oh god. I mean of course the person who was in between. Yeah. And I said okay. Then but when I eventually started shooting I realized that it was a great show because it was great writing, जो कि अक्सर नहीं मिलती है television में. My director was fantastic, very cued in, and actors are very good. And I just thought कि there's lots to learn and lots to have fun and do here. So I just stayed back for like so many years. Yeah, we are very happy. Yeah. रमन कुछ सवाल? हाँ, so मैं बोलने वाला था कि इंटरनेट पे कुछ unanswered questions हैं जो the nation wants to know. तो हम बताइए, शूट. So एक सवाल पहले आप पूछना चाहोगे? मैं पूछना चाहूँगी, इंटरनेट का सवाल है ये कि क्या आपने सुंदरता पे कोई कोर्स किया हुआ है? I'm sorry. ये क्वेश्चन हमने आपकी प्रोफाइल से पिक किए. आपके कमेंट से पिक किया है मैंने. ये हमारे राइटर्स ने नहीं लिखे हैं. Oh God, comments are like one comedy show in themselves. Hilarious. Yeah. Moving on to the next question. एक क्वेश्चन ये भी है कि अब भाभी जी घर पे क्यों नहीं है? भाभी जी हर जगह होना चाहिए. भाभी जी हर घर पे है. हर घर पे है. वैसे ये शो इतना चला है कि भाभी जी एक्चुअली हर घर पे है. जी, that's true. जी. मैं अभी आपको बता ही रही थी कि आई थिंक फैन बेस भी इसका ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक everybody follows the show. And a Everybody lot is a of fan. male audience, which is not typically the television viewing audience. Right. मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि लोग ये शो चला के योगा करते हैं. योगा करते हैं? हाँ, मेडिटेशन करते हैं. ये शो चल रहा है बैकग्राउंड में और योगा कर रहे हैं. It's like कि अच्छा ये शो कहीं पर भी चल सकता है और एयरपोर्ट पे भी चल रहा है और अलग-अलग लूप पे चल रहा है. शुरू में मुझे याद है हमारे सेट के ऊपर एक पूरी फैमिली आई हुई थी. तो हस्बैंड वाइफ और सास आई हुई थी. तो सास ने तो मुझे ऐसी गंदी निगाहों से देखा, मतलब मदर इन लॉ ने, ये है वो लड़कियां जो बहुओं को बिगाड़ती हैं और पतियों से सब काम कराती हैं. and the wife is saying मैं तो ना बड़ा दिखाती हूँ इनको चैनल की, आए देखो कैसे हस्बैंड इनका काम करता है, इनकी साड़ी आयरन करता है, कॉफी बना के देते, तो कुछ करते ही नहीं है. That's true. And the husband is saying, and he is laughing, he said मैं भी तो बोलता हूँ she's so excited in the bedroom, you also learn something from it. And the mother-in-law is sitting in the corner and giving you daggers. Like okay. That's something that I really like about your character as well, कि वो मतलब कि पति तो नल्ला है, so you make him do and you're happily putting nail paint, and I'm like यार empowerment, it's so empowering for women. I just feel that
being a house husband is such a new thing in India. Yeah. But what's wrong with it? Of course, we हाँ. have kind of exaggerated it. हाँ. तो मैं कई बार Hmm. डायरेक्टर से बोलती भी थी, यार come on यार, इतना भी मत करो. Let the house husband not be demeaned so much. He said, करो ना, it doesn't matter. मैंने कहा, I shall fight for all the house husbands. I'm very too happy to have a house husband putting nail paints for me and I'm earning. Yeah. It's fine. जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इनपुट्स मुझे लगता है आपकी तरफ से भी आए हुए हैं. एक्चुअली क्या हुआ कि जब शुरुआत में ये शो लिखा हुआ था तो इट वॉज अ वेरी मीटी लीड रिटन रोल फॉर द जो ट्रेडिशनल भाभी थी. हाँ. And then and that was also one of my reasons I was thinking कि do I really have anything interesting to do. Plus television की audience typically हम ऐसा assume करते हैं कि बहुत Miss Goody Two Shoes heroines होती हैं. You know, they are very Right. आदर्श Hmm. बहुएं संस्कारी. और पत्नियां जो कहती हैं तुम कभी तो बदलोगे ना नाथ. That kind of space. So I was like, this is not going to work. Right. And then I just thought कि then I told the director कि ये ऐसा करते हैं. And then the reason that I just thought that this is going to be fun is because it was challenging, experimental, and the fact that the director kind of resonated with me and he was very open to the ideas. And then when the जो writer थे उन्होंने देखा कि ये इस तरह से मैं कर रही हूँ हाँ. और मैं इसको ऐसा फ्लिप कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छे खूबसूरत सीन्स लिखने शुरू कर दिए. और फिर मनोज संतोषी उनका नाम है, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने वो बेडरूम सीन्स लिखे, नोक झोंक जो थी. क्योंकि बहुत वक्त तक पति पत्नी की कॉन्वर्सेशंस जो हम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं वो नेचुरल नहीं होती है ना. That's We don't true. talk like हाँ. that. You know, we just fight. Yeah, There is yeah. no that real bickering of a husband-wife was not showcased On in a television, regular yeah. television shows, and he used to love writing it and I used to love performing it. So वो मुझे ऐसा लगता है कि that was the thing that made me stay because I thought it was fresh on TV and it was new to हाँ. do. And seeing the audience loved it. Exactly. फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पर आप बोल रहे हो कि मुझे ये शो नहीं करना है, फिर आप स्टिक करते हो शो के साथ और 6 साल आप Yeah. रहते हो शो के साथ. फिर आपका एक वीडियो मैंने देखा इंटरनेट पे जो आपका फेयरवेल डे है आई थिंक, एंड यू गॉट रियली इमोशनल अबाउट दैट. So- Yes, I know. I just had such a good time on that show. मेरे जो co-actors थे वो आसिफ शेख, he's a great friend of mine, रोहिताश गौर, योगेश हप्पू, जी. you know, टीका मलखान जो हमारे थे, वैभव, Yeah. दीपेश unfortunately is not with us, Yeah. सलीम, शोमा जी, Sanand. I mean, all of them had become my very good friends. We used to have a real good time on that Right. show. मगर मुझे ऐसा लगने लगा था कि I somehow thought that I had done what I had to do on that show. फिर I mean, you know, then you feel कि अगर आप एक artist हैं, so for good or for bad, you have to explore yourself, right? बिल्कुल, बिल्कुल. Success Right. मिलना या ना मिलना तो खैर किसी के हाथ में नहीं होता. But as an artist, it's my duty to keep on moving ahead and growing. So I just thought that I had to move from there. Bringing something new to the character, वो कैसे, कितना challenging था आपके लिए अगर था तो? शायद अगर ये ड्रामा होता तो मैं 1 साल भी न टिक पाती. पर चूंकि ये कॉमेडी था और चूंकि हर महीने में 1 आध या 2 बार हमें कोई और कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता था, तो जैसे कि मैं इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ, मैं कैट वुमन बन चुकी हूँ, मैं लड़का बन चुकी हूँ, मैं बसंती बन चुकी हूँ, यू नो, मैं शायर बन चुकी हूँ. तो मतलब हर बार एक नया कैरेक्टर आप करते थे. तो कैट वुमन तो पूरी कैट वुमन, हाँ. लड़का तो लड़का और थानेदार तो थानेदार. थानेदार. तो यू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो हर बार ऐसा लगता है चलो ये भी करके देखते हैं, ये सीखते हैं. सो हाँ. फिर भी इंक्विजिटिविटी और वो था. जी. अगर ये ड्रामा होता तो शायद मैं 1 साल या 2 साल ही टिक पाती. जी. तो वो ड्रामाज आर मोर टफ. Right. आपने किया भी है, ऐसा देश है मेरा. That was my first show. Yeah. Was not for too long. Was हाँ. around less than a year, I think. Right. Yeah. Yeah. How was that experience? Did you वहाँ पे ये struggles face किया आपने of this daily soap struggle? So I was actually studying in Delhi when this had come to me, or I did not want to join the corporate world. और जब ये आया तो my father had expired recently and then my sister had shifted to UK. वो पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में. तो मैंने मम्मी से कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, और जब मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे टेलीविज़न करना ही नहीं था, क्योंकि मैं टेलीविज़न सेट मेरे घर पे ही नहीं था, मैं टेलीविज़न देखती ही नहीं थी. तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो अब यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट और तुम किसी को बम्बई में जानती नहीं हो, तो इससे बेहतर है कि
तुम ये ले लो शो, फिर जब तुम शिफ्ट कर जाओगी वहाँ पर, व्हेन यू विल हैव अ हाउस एंड यू विल हैव अ प्लेस टू स्टे, फिर आप ढूंढो जो आपको ढूंढना है. सो दैट वाज जस्ट माय मीन्स ऑफ कमिंग टू बॉम्बे. राइट. या एक स्टेपिंग स्टोन था बेसिकली. एक स्टेपिंग स्टोन था बिकॉज आई डिडंट नो परिंदा इन बॉम्बे. हाँ. कोई आपकी नेटवर्किंग कोई भी नहीं था. तो फिर आपको करना क्या था? आई वांटेड टू डू फिल्म्स or theatre. हाँ. Yeah, because I had done some theatre as a child in मैं अपने शहर उज्जैन में मैंने थिएटर किया हुआ था. तो टेलीविज़न सीरियल्स में करूँगी, और वो दौर भी शायद वो उस वक्त वो था जो सास बहू वाले सीरियल्स शुरू हो चुके थे, तो उसमें मुझे नहीं घुसना था. और तो वो मेरा एक ऑप्शन सिर्फ ये था कि चलो फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड फिजिकल रीजंस की तो मैं, मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे फ्लाई इन फ्लाई आउट कराया था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. तो मैं डायरेक्टली लंदन चली गई थी शूट करने. और उसका एक लालच ये भी था कि दैट टाइम माई बॉयफ्रेंड एंड माई सिस्टर बोथ वर इन लंदन. मैंने कहा चलो आई गेट टू मीट देम. दिस इज डेस्टिनी, है ना? मतलब आपके लिए सॉर्ट ऑफ पाथ कार्व आउट आपके हिसाब से हुई. Good or for bad, but that was my I mean, reason. for good for us, we got you in the industry and then everything followed. So we are very glad. पर आपको ऐसी क्लैरिटी इतनी कैसे आई कि सास बहू वाला इज पीकिंग, मतलब वो सक्सेसफुल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट यू हैड क्लैरिटी कि वो नहीं करना आपको? शायद I was not able to connect with it. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स. और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.